मॉर्निंग स्टूडेंट। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल क्वेश्चनरी। मेथड ऑफ क्वेश्चनरी मतलब होता है छोटा सा एक फॉर्म रेडी करना जिसके अंदर सब क्वेश्चन लिखे हो और साथ में आंसर लिख के थोड़ी स्पेस दे सके। अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंजमेंट क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज मेड। आपको जिस चीज़ की स्टडी करनी है ना, जिसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उसके रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन अच्छी तरह से अरेंज किया गया हो ना, तो द स्पेस बिटवीन क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर, और क्वेश्चन के बीच स्पेस भी रखी हो जिसमें आंसर भी लिख सके। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर इन सच अ वे इज कॉल्ड क्वेश्चनरी। इस तरह से जो क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं ना, उसे कहते हैं क्वेश्चनरी। सिंपल वे में बोलूँ तो सिंपल सा फॉर्म बनाना। एग्जाम्पल देती हूँ, कोई स्कूल का फॉर्म हो, बैंक का हो, जिसमें क्वेश्चन हो और हम आंसर भी लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं क्वेश्चनरी। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चनरी इज कॉल्ड अ मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। मीन्स इस मेथड से जो भी इंफॉर्मेशन मिली जाती है उसे कहते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। ये मेथड क्या करा जाएगा कि आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप पहले एक फॉर्म बना लो जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। जब वो फॉर्म लेकर पर्सनली दे दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घर घर जाकर इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तब इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल क्वेश्चनरी। द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय डिपेंड मेनली on the design of questionnaire. A well-designed questionnaire is known as the ideal questionnaire. The following points should be kept in mind while drafting an ideal questionnaire. इसके अंदर बताया गया कि हमें आइडियल क्वेश्चनरी बनाना हो, जब मतलब कोई अच्छा परफेक्ट फॉर्म बनाना हो, तो उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो इसमें कैरेक्टरिस्टिक में बताया गया है। Every questionnaire must have covering letter or an appropriate title so that the reader get clear idea about the purpose of study. Number of questions will be minimum as a possible. The fewer number of questions have greater chance of getting better response from the respondent. Long question discourage the respondent to provide accurate answer, particularly toward the end of questionnaire. There is no specific rule for exact number of questions. If the number of question is large, say 25 or more, it is advisable to divide the questionnaire into various parts to ensure clarity of question. The number of question in the questionnaire should be consist with the purpose of inquiry. Questions should be simple, short and understandable. They should be ambiguous and dull in meaning. For example, if the question is "Are you educated?" the response cannot understand the meaning of educated. Does it means education up to secondary, higher secondary or graduate instead the postgraduate? The question should be what is your education level? Following 5 options can be understand up to answer to question up to primary, up to secondary, up to higher secondary, up to graduate, uneducated. The arrangement of the question should be logical. The order of the question should be formed to general specific. For example, what is your opinion about smartphone? Do you use smartphone? This is improper arrangement of the question. The correct order is question followed by the question A. पहले हम पूछेंगे स्मार्टफोन यूज़ करते हो, या फिर पूछेंगे कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, राइट? Question of sensitive nature or personal life should be avoided. For example, question relating to marital status, other sources of income of respondent, etc. If such a question are necessary in the survey, and assurance should be given to respondent the information provided by him, her will keep confidential and will not be used for any other purpose. Answer to the question should be free from any calculation. For example, avoid the question like average income of the earning member of family. The question having answer yes or no, multiple alternatives should be asked. But the question whose answer do not have specific options should be avoided. For example, what is your opinion about the semester system? Against the yearly system is education. Since there are lots of various answer like strongly in favor, natural, against, strongly against. They are difficult to tabulate or interpret. Hence, if necessary, there must be minimum number of such a question in questionnaire. Let us example. अब मैं एक साथ सब समझाऊंगी कि सारे पॉइंट्स में क्या बताया गया है। कि आप जो फॉर्म तैयार करते हो वो एक आइडियल मतलब एक परफेक्ट फॉर्म होना चाहिए। आप जब किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो उसमें क्वेश्चन वैसे होने चाहिए ना कि जो वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो, टॉपिक के रिलेटेड हो। जब कोई क्वेश्चन रेडी करते हो
करते हो, कोई फॉर्म रेडी करते हो तो उसके लिए क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कौन कौन सी बातें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ये सब ये कैरेक्टरिस्टिक में बताया गया है। कि फर्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑफ टाइटल, मतलब सबसे पहले उस फॉर्म को परफेक्ट एक टाइटल होना चाहिए। जैसे कि आप फॉर्म सामने वालों को दे रहे हो तो आप अगर खुद के बारे में खुद भर रहे हो तो ठीक है, अगर सामने वाले को फॉर्म दे रहे हो तो कम से कम ऊपर के टाइटल पढ़ के ही पहले समझ जाए कि ये फॉर्म किस बारे में है। अगर जनरल क्वेश्चन लिख रहे हो तो उस हिसाब से टाइटल होने चाहिए, अगर किसी के बारे में पूछ रहे हो तो वैसे टाइटल होने चाहिए। फॉर्म का पहला क्वेश्चनरी का सबसे पहला अच्छा टाइटल होना चाहिए, जिससे वो टाइटल देखकर हर कोई पहचान जाए कि ये किस बारे में फॉर्म है। फिर सेकेंड पॉइंट है मिनिमम क्वेश्चन के बारे में। तो मतलब फॉर्म में जितने हो सके ना उतना मिनिमम क्वेश्चन होना चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट ज़रूरी क्वेश्चन हो उतने ही होने चाहिए। क्योंकि आप किसी के अगर दूसरे को फॉर्म भरने देते हो तो अगर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन हो ना तो आपने 30-40 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हो, जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे तो वो फॉर्म के क्वेश्चन भरते भरते बोर हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन कैसे भरूँ, इसलिए फॉर्म में जितने हो सके उतना मिनिमम क्वेश्चन 25 से मोर होने चाहिए, मतलब 25 से कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए, पर उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपके फॉर्म में हो सके उतना कम से कम क्वेश्चन लिखे, जो ज़रूरी है वो ही लिखे, ताकि सबको समझ में आए और इजीली फॉर्म भर सके। फिर थर्ड पॉइंट है, कहना चाहता है कि क्वेश्चन शुड बी सिंपल होने चाहिए, ताकि इंक्वायरी हम इजीली कर सके। क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल होने चाहिए, इतने सिंपल कि सामने वाला जो है वो इजीली समझ सके क्वेश्चन में क्या है अंदर डिटेल में। ये हम लोग कोई मैथ्स की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करनी है तो बिग क्वेश्चन हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आपको पूछना है कि आप लिटरेट हो या नहीं हो, आर यू एजुकेटेड और नॉट, सिर्फ इतना क्वेश्चन होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि लाइक सामने वाले को बुरा ना लगे। डायरेक्टली पूछोगे आर यू लिटरेट या अनलिटरेट तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। डायरेक्ट लिटरेट अनलिटरेट नहीं, लाइक आर यू एजुकेटेड और नॉट ऐसा फॉर्म में होना चाहिए। या तो व्हाट इज़ एजुकेशन लेवल, मीन्स आपकी एजुकेशन लेवल कितनी है, कहाँ तक पढ़े हो, ऐसा सिंपल जो है वो इसमें होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है अरेंजमेंट शुड बी लॉजिकल, मतलब अरेंजमेंट लॉजिकल होनी चाहिए। कि क्वेश्चन की जो अरेंजमेंट हो ना वो अरेंजमेंट लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिकल मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, बाद में कौन सा पूछना चाहिए, ऐसा इनकी अरेंजमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि अपने जो है वो क्वेश्चन की अरेंजमेंट है गलत हो तो कितनी इम्पैक्ट और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, लाइक सर्वे करने जा रहे हो, तो आप जो है उसमें पहले क्वेश्चन ऐसा लिखोगे कि आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हो। सेकंड क्वेश्चन ऐसा लिखोगे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, तो ये अरेंजमेंट रॉन्ग होगा। आपको पहले उससे पूछना चाहिए कि फिर कंपनी पूछनी चाहिए। पहले आप उससे पूछना चाहिए कि आप यूज़ करते हो मोबाइल, वो हाँ या ना का जवाब दे, फिर हम पूछ सकते हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। तो इस तरह से क्वेश्चन तैयार करते हो तो उसका अरेंजमेंट परफेक्ट होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि पर्सनल लाइफ क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, अपने पर्सनल लाइफ क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए। कि कोई भी पर्सनल लाइफ क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करता हो, ऐसे क्वेश्चन हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। कितने लोग हैं वो अपना मैरिटल स्टेटस के बारे में नहीं बताते, कितने लोग हैं वो प्रॉपर सैलरी नहीं बताते, कितने लोग अपनी प्रॉपर एज नहीं बताते। कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चन जो वो लोग को बताना नहीं चाहते वो नहीं पूछना चाहिए। या तो उस क्वेश्चन के पास ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि ऑप्शनल है, या तो नॉट रिक्वायर्ड आता है, नॉट रिक्वायर्ड है, ऐसे लिख देना चाहिए। आपने कितने सारे फॉर्म देखे होंगे जिसमें कितने क्वेश्चन के पास लिखा हुआ होता है कि ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल मतलब इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ठीक है, नहीं देनी हो तो भी ठीक है, ऐसे आता है फॉर्म में, राइट। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आंसर शुड बी फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन, मीन्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन उनसे नहीं पूछने चाहिए जिससे उन्हें कैलकुलेशन करनी पड़े, या बहुत टाइम जो है उनका आंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कैलकुलेशन करने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े, वो इजीली आंसर लिख सके। आपको जो है वो ईयरली इनकम पूछनी हो
तो किसी से कि इनकम कितनी है तो वो काउंट कर लेगा। फिर ऐसे पूछोगे पर डे इनकम कितनी है, तो पूरे ईयर की जगह पूरे डे की पूछे तो उन्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जितने हो सके उतना नहीं पूछना चाहिए। फिर है मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड, मतलब मीन्स हो सके उतना अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है उतना नहीं पूछना चाहिए। अल्टरनेटिव टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब है जिस क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो वैसे जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए, लाइक आर यू एजुकेटेड, यस और नॉट, नीचे दो ऑप्शन और बॉक्स बनाकर वो फॉर्म में ऑप्शन रख देना चाहिए कि आर यू एजुकेटेड और नॉट। यहाँ पे देखो बताया गया है कि कोई हम लोग एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, कोई फॉर्म पूछा गया है तो उसमें बताया गया स्ट्रांगली इन फेवर, न्यूट्रल, अगेंस्ट, स्ट्रांगली अगेंस्ट, मतलब आप फेवर में हो या नहीं हो, न्यूट्रल हो कि नहीं हो, उस बारे में या बताया गया है। बनाकर ऑप्शन रख देंगे ना तो वो सिर्फ टिक कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड व्हाट इज़ योर एजुकेशन लेवल, तो आप कहाँ तक पढ़े हो तो उसमें लिखने के एजुकेशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या सिर्फ 12th स्टैंडर्ड, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देना। फिर आप कहाँ तक पढ़े हो वो सिर्फ ऑप्शन टिक कर देंगे। जितना हो सके उतना मल्टीपल और अल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे कोई भी पर्सन इजीली फॉर्म भर सकती है। तो आप जब परफेक्ट फॉर्म तैयार करोगे ना तभी आप सामने वालों से सही इन्फॉर्मेशन ले पाओगे और सामने वाले भी जो है वो इजीली इन्फॉर्मेशन देंगे। और पूरा फॉर्म में सही नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, क्वेश्चन लॉजिकल नहीं होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना वो सही तरह से नहीं मिलेगी। इसलिए परफेक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन फॉर्म बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, स्पेसिफिक क्वेश्चनर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टडी हैबिट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ गुजरात बोर्ड। जैसे यहाँ दिया गया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नॉर्मल वे में स्टूडेंट का नेम बताया, सेक्स मतलब फीमेल मेल, तो भी ऑप्शन टिक करने का है, उन्हें लिखना नहीं है। प्लेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्कूल नॉट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट नहीं है उसकी ग्रांट के लिए ऑप्शन टिक करना है। फिर स्ट्रीम कौन सी है तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मीडियम ऑफ स्टडी के लिए 4 ऑप्शन है। फिर स्कूल का टाइम, सारा यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है। मतलब अल्टरनेटिव और मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए और एकदम परफेक्ट वे में फॉर्म बनाया गया है। इसके बाद है अब क्वेश्चनरी को तैयार हो जाती है, ये फॉर्म जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं। अब पॉइंट आता है ना कि आप इन्फॉर्मेशन लोगों को किस तरह से लोगे, वो पॉइंट, तो उसके लिए दूसरे पॉइंट आते हैं। मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्वेश्चनरी थॉट, आप किसी तरह से इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसमें 2 मेथड आती है, बाय पोस्ट और बाय इन्यूमेटर। जब आपको क्वेश्चनरी के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, जब आपने फॉर्म तैयार किया और उसके बाद आपको जो है वो यही इन्फॉर्मेशन लेने जाना हो तो कैसे लेने जाओगे, उसके लिए 2 मेथड है, बाय पोस्ट और बाय इन्यूमरेटर थ्रू। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।